बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। नाज़रीन गिरामी, साल 9 में यानी कि 2019 में सियासत में क्या होगा, मईशत में क्या होगा और शोबिज़ में क्या होगा, उसके अलावा पाकिस्तान क्या क्या कामयाबियाँ समेटेगा और क्या क्या खदशात मुख्तलिफ शोबाजात में हमें लाहिक हैं, इस पर भी बात करेंगे। 3 बहुत ही खूबसूरत मेहमान हमारे साथ होंगे। एक सरप्राइज़ है छोटा सा आपके लिए, मगर पहले आपको लिए चलते हैं रशीद मिस्त्री साहब की तरफ, जहां एक तरफ तो जश्न का सा समा है, नए साल की खुशियां मना रहे हैं, मगर रशीद मिस्त्री साहब हमेशा की तरह कुछ परेशान हैं। देखते हैं क्या नया और दिलचस्प होने जा रहा है रशीद मिस्त्री साहब की तरफ। वाह, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੰਮੀ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਠੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ? ਪੁੱਤਰ ਡਾਲਰ ਦੁਬਾਰਾ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਪਰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕੂਵਤ ਸਮਾਤ ਕਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੀਵਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿਣ ਡਈ। ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਡਰਿਲ ਨਾਲ ਵੀ ਖੋਲੇਂਗਾ ਨਾ ਟਰ ਕਰਕੇ, ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਐਡਾ ਨੈਸ਼। ਓ ਪੁੱਤਰ, ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ? ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਸੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਏ ਮੋੜ पे ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣ ਦੇਣਾ। ਰੱਖਣਾ ਤੇਰਾ ਰਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਰੂਦ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਛੱਡਣਾ। ਇਹੋ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਬੈਠਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਭੈਣੇ, ਨੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਤੇ ਟਿੰਡ ਕਾਰੇ ਦੀ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਮਲ ਕਰਨ? ਉਹ ਤੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੂਟੀ ਲਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਭੈਣੇ, ਨੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਮੋਹਰਾ ਪਾ। ਓਏ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹਮਦਰਦ ਹੈ ਮੁੰਡਿਆ। ਇੰਜ ਦੇ 2 ਹਮਦਰਦ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੋਹਰੇ ਇੰਜ ਟੁੱਟਣ ਜਿਵੇਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਏ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ। ਓਏ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਬੈਠਾ। इसमें इमरान खान का क्या कसूर है? और मैं सोचा सी कि तब्दीली तो बाद ए मेरी फर्मा बरदार हो जाएगी। अच्छा, मैनू अखा नहीं विखाएगी। अच्छा, मेरी खिदमत करेगी और मेरियां लत्तां कुटेगी। हाँ जी। पर ए पीटीआई वाले ओए ते जित के लत्तां मारन लग पे ने। ओए मैं किथे अंगूठा ला बैठा, मैं किथे अंगूठा ला बैठा। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਭੈਣੇ, बोलिया मेरे हक च। ਨੀ ਘਰ ਕੋਈ ਕੀਮੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? मैं सदके ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ, ਮੋਟੀ ਜਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। मेरे पुत्रा मैं तेरे कुर्बान जी। ਓ ਮਰੇ ਸਦਕੇ ਨਾ ਜਾ, ਟੂਟੀ ਲਾ ਮਰੇ। ਆ ਮਰੇ ਤੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾ ਕੇ ਵੀ ਨਮੂਨੀਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਲੈ ਜਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ। अल्लाह ने ना तेनू तेरी नीयत दा बहुत देना। ਆਇਓ ਮਤ ਨੂੰ ਨੀ ਮਰੇ ਕੋਲ ਮਾਰ ਤੇ ਸਹੀ। आज ना बेगम जी बाहर क्यों खलोते हो? मेरे उस्ताद का घर है, शर्मान वाली लोड़ नहीं है। केड़ा कोई पढ़ता अस्सलाम वालेकुम या हबीबी मरहबा या हबीबी अस्सलाम वालेकुम। शाह जी नया साल मुबारक। आपको भी मुबारक। बड़ी मेहरबानी। या हबीबी मरहबा उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम। मैं क्या बेगम जी तुसी परेशान होवोगे कि ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਬੰਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ, ਉਸਤਾਦ ਰਸ਼ੀਦ ਮਿਸਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਅਜੀਬ ਮਿਸਤਰੀ। ਸਲਾਮ ਕਰੋ ਨਾ, ਸਲਾਮ ਕਰੋ। كيف حالك حبيبي؟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ना हम चुप खामोशन मरदूदन। ना दिस इज द पाकिस्तान। इथे ओनली मैं हबीबी, बाकी सारे खबीसी। How sweet حبيبي। फड़िया गया चोरा। साजी ओए मैं तेनू आंदे पछाण लिया सी जीबिया। तू मेरी वर्कशॉप दा सामान बेच के ते शारजा नस गया सा। ओए मैं तेनू गड्डियां दा काम सिखाया सी, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਪਕਾਨੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਜੇ ਉਥੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪਕਾਨੇ ਵੇਚਣੇ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਾਰਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪਗਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਪਗਾਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਗਲੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਿਰਫ ਪਕਾਨੇ ਬੰਨ ਲਓ, ਚੱਕਰ ਲਵਾਉਣਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਗਲੀ ਦੇ 20 ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਗਾਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਮਿਸਤਰੀ ਕਿੱਡਾ ਅਜੀਬ ਹੈ ਤੂੰ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਕਿ ਲੇਲਾ ਹੈ?
ਲੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸਤਾਦ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਓਏ ਨਾ ਮਾਰ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਗਾਨੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਪੈਂਟ ਵੇਖੋ, ਨਾਲੇ ਸ਼ਰਟ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਐਨਕ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਵੇਖੋ। ਓਏ ਇਹ ਪਕਾਨਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਕਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? इंतहाई घटियातुन, बदतमीजातुन, सिफलतुन इंसाना। अभी आपने एस्टीमेट कम लगाया है। पुगाना होगा तुम्हारा बेबे। ਪੁੱਤਰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਰਜਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਦਲੇ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੂਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਉਂਝ ਹੀ ਲਮਕਣ ਡਈਏ। ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੌਣ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੁਰਤੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰ ਲੱਪਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬਣਾ ਲਈ ਏ, ਡੌਗ ਵਾਸ਼। ਡੌਗ ਵਾਸ਼, ਕੁੱਤੇ ਨਹਾਉਣਾ, ਕੁੱਤੇ। ਥੱਲੇ ਹੀ ਨਹਾਉਣਾ ਕਿ ਉੱਤੇ? ਇਹ ਜੀਬਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ? ਓਏ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀਬਾ? ਯਾ ਮਸਤੂਰਾਤਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ? ओफो, ये तो बहरा लगता है मुझे। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। हमारा हबीबी कह रहा है कि ये शारजा में कुत्ते नहलाता है, कुत्ते कुत्ते कुत्ते। ਸੁੱਤੇ। ਓਏ ਜਿੱਦਨ ਦੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ। ਓਏ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ। ਉਸਤਾਦ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅੰਗੂਠਾ ਜੈਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੇਰਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾਇਆ। ਬੱਲੇ ਤਲਾਓ ਜੀ, ਬੱਲੇ ਤਲਾਓ ਜੀ, ਬੱਲੇ ਤਲਾਓ ਜੀ। ਓਏ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ। ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ਾਰਜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਖੋਲ ਲਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਸਕਤ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਲਤਾਨ ਕਬੂਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਨਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਆ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਖਾਣ ਡਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਵੇ ਅਜੀਬ ਮਿਸਤਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂ ਸਤਾਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਜੀਬ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। वाह वाह करके। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਠੰਡ ਜੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਵਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਿਚੋੜਿਆ। तो मेरे वालिदुन इस पर केस करा तुन। ਕੁੱਤਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਨਿਚੋੜਿਆ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਛੰਡਿਆ, ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜਾ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਲੱਗਾ। ਬੇਗਮ ਚੱਲੀਏ। हबीबी हबीबी। ਫਟਾ ਪਾ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਧਰੇ ਵੱਡਾ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ। ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਉਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਭਈਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਸੁਣਾ, ਕੈਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕੈਸੀ ਜਾਏਗੀ? ਉਹ ਭਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਬੈਠਾ ਅੰਗੂਠਾ? ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਹ ਸੀ ਨਾ ਡੋਰੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣ ਦੀ, ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ। ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟੇ ਇਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੂੰ ਥੋੜੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮਾਰਾ। ਉਹ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਉਹ ਲਵਾਰਸ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਟੂਟੀ ਕੈਂਚੀ ਨਾ ਕੱਢੋ ਗੋਲੇ ਦੀ। ਉਹ ਯਤੀਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇਗਾ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਗੱਲਾਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ।
नाज़रीन, अंदाजा हो ही रहा होगा आपको कि कुव्वत समाज जो है वो कितनी अहमियत रखती है जिंदगी में, खास तौर पे इब्लाग के लिए। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम के अगले मरले में। आपके लिए बहुत कुछ है, सरप्राइज भी है, 3 बहुत ही उम्दा मेहमान आने वाले हैं। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर, कहीं नहीं जाइए। ਬਾਜੀ ਹਾਂ। ਭਾਂਡੇ ਹੋਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਕੀ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਤਾਨੇ ਮੇੜੇ ਅਜ਼ੀਅਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੇ ਖਾਵਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। हमारा सेगमेंट है मुआशरा और हम। मुआशरे में जो तब्दीलियाँ आ रही होती हैं नाज़रीन गिरामी, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ अखलाकी इन्हितात, मगर जो तब्दीलियाँ आ रही होती हैं उस पर हम इस सेगमेंट में ख़ास तौर पे बात करते हैं। कुछ बातों के हवाले से तो हम भी बिल्कुल क्लियर हैं कि इसको अखलाकी इन्हितात ही कहा जाएगा, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तब्दीली के ज़मरे में आएंगी। कुछ लोग जिन्हें इन्हितात समझते हैं, कुछ लोग इन्हितात नहीं समझते हैं। मगर आज जो मौजू और किरदार हम आपके लिए लेकर आए हैं उस शोबे में हमें वाज़ेह इन्हितात नज़र आता है, क्योंकि तालीम अब सिर्फ और सिर्फ बिजनेस बनकर रह गई है। लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लाखों की फीस अदा करते हैं स्कूलों को, और उसके बाद उससे भी ज़्यादा ट्यूशन की फीस अदा करते हैं। मगर ट्यूटर्स का क्या हाल है, असातिज़ा का क्या हाल है? वो जो खुलूस होता था, यकीनन आप असातिज़ा की खिदमत में उनका मेहनताना भी पेश करते थे, मगर उसके साथ एक खुलूस भी हुआ करता था। मेहनताना बढ़ गया है, खुलूस गायब हो गया है। ऐसे ही कुछ किरदार हमारे साथ हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद है एक मॉडर्न ज़माने के उस्ताद, सनी मेरा नाम है सर जी, सनी साहब। ये मॉडर्न ज़माने के उस्ताद हैं और ट्यूशन्स पे गुजारा करते हैं ये, मगर लाखों रुपया कमाते हैं ये ट्यूशन से। बड़ी तकलीफ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪ ਪੜਾਇਆ ਕਰੋ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ये सही बात की आपने, बड़ी अहम बात की आपने। और उस जानिब हमारे साथ पुराने ज़माने के उस्ताद हैं। सच्ची बात है कि मैं आज भी ज़माने के असातिज़ा को आइडिया करते हैं, उस ज़माने से ताल्लुक़ रखते हैं। ਮਾਸਟਰ ਫੈਜ਼ ਬਖਸ਼ ਜੀ, मास्टर फैज़ बख्श साहब, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੈਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। लाखों लोगों ने इनसे फैज़ पाया है, लाखों लोगों ने। ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਆਲਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। सनी सर, जी बेटा। सर मुझे ये बताया ना कि अंजलिना जूली है ना, वो कितने साल की हो गई है? बेटा वो तेरे टीचर ने या तेरे सूलतकार ने? मास्टर साहब आप चुप रहे। ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਚਰੋਕਣਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੀਸ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। सर आप मुझे बताए ना अंजलिना जूली कितने साल की हो गई है? ਬੇਟਾ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 20-25 ਸਾਲ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। वैसे बेटा तू शकीरा के गाने क्यों नहीं देखता? सर जी वो तो मैंने याद भी किए हुए हैं। गुड। हाँ, सामिना मिना ए वक्का वक्का ए सामिना मिना मार अफ्रीका असबून और अफ्रीका सामिना मिना ए वक्का वक्का। देखा मेरे स्टूडेंट विच कितना कॉन्फिडेंस। सर अभी तो मैंने वो किया नहीं जी। लाहौल प्रिंसिपल नु गश पाने वाला स्टेप जे। विकी बेटा। जी सनी सर। ऐड की मेरी बर्थडे ते मेन आइटम तेरी होएगी। थैंक यू सर, आई एम obliged सर, आई एम एक्साइटेड। बेटा तेरे पापा मैनू 1.5 लाख रुपया फीस देंदे ने, मैं तेनू oblige नहीं करना ते होर शबाज शरीफ ने करना। सर ऐसी बातें ना किया ये क्या, आप अपने टीचर पे हाथ उठा रहे हैं? दो मरतबा। सनी साहब उसने मारा आपको? नो प्रॉब्लम। उस्ताद बाप की जगह होता है, उसकी जुर्रत कैसी हुई कि आप पे हाथ उठाए वो? यू ओल्ड फैशन मैन। आप क्या कह रहे हैं? न्यू स्टाइल। जरा थोड़ा जोर से मारते 20,000 और मिल जाता है। क्या मतलब? ये पैकेज में शामिल है। क्या मतलब? मैं ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਕੋਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੋ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਇਸ਼ੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਕੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਲਵੇ। सनी साहब पैसा चाहिए सिर्फ, इज्जत की कोई वैल्यू नहीं, इज्जत की कोई ख्वाहिश नहीं आपको। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਡਫਰ ਹੋ। ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਮਾਰਦਾ। 1.5 ਲੱਖ ਨਾਲ ਮੇਰਾ 150 ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ 2 ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਥੁੱਕ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਨਾਹ ਬਰਖੁਰਦਾਰ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਨਾਹ। अंकल क्या बार बार बरखुदार बरखुदार, ब्रो कहते हैं ब्रो। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ
ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਰਹੇ जी 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 1 ਮਿੰਟ ਦੇ 4000 ਰੁਪਇਆ ਟੀਚਰ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚ ਮੇਰਾ 1000 ਨਾ ਘਟਾ ਦੇਈ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ 5000 ਰੁਪਇਆ ਲਾਂਗਾ, 1 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਘਟ ਲਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੌਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਾਸ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। अच्छा मास्टर साहब, बात यह है कि दुनिया तब्दील हो रही होती है, ये फ़लसफ़ा भी अब तब्दील हो चुका है और मेरे ख्याल में ये वो तब्दीली है जिसे अब हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें समझना चाहिए। जो हो चुका माजी में सो हो चुका। अब बहरहाल हमें ये रवैया अपनाना पड़ेगा कि बच्चे पर हाथ न उठाया जाए, उसे प्यार से पढ़ाया जाए। अलबत्ता ये बात दुरुस्त है कि उस ज़माने में भी जब मारते थे तो एक इखलास हुआ करता था, मगर अब वो माजी की चीज़ें हैं। अब आप उस इखलास को बुनियाद बनाकर बच्चे पे हाथ नहीं उठा सकते। अब दौर ये है और हमें भी इस पर अमल करना चाहिए कि बच्चों को प्यार से पढ़ाएं, दलील से समझाएं। ਕਿਹਨੂੰ ਦਲੀਲ ਸਮਝਾਣ ਡਿਆ? ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੁੱਠੇ ਟੰਗ ਕੇ ਡੀਸੀਓ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਡੀਸੀਓ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। अच्छा देखिए, ये एक बारीक बात है। बस मैंने अपने असातिज़ा से बहुत मार खाई है, मगर ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਬਣਦੀ ਸੀ ਨਾ। मगर मुझे पता है कि वो बहुत पुरखलूस थे। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਬਕ ਸੁਣਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਗਾਲਬ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। मगर मैं आज भी उनका, जिन्होंने हमारी कुट लगाई, अपने वालिद की तरह उनका एहतराम करता हूँ। उनका एहतराम अपनी जगह, उस ज़माने में जिस तरह से मारते थे वो भी हमारे सर आंखों पर, मगर अब दौर बदल गया है। अब इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और है, मैं अगर अब ये समझता हूँ कि बच्चों को नहीं मारना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उस ज़माने में मेरे टीचर्स अगर मारा करते थे तो मैं उनका एहतराम नहीं करूँगा। वो उस दौर की बातें थी, उस दौर की रवायात थी, वो उस दौर के साथ ही ख़त्म हो गई। वो जैसे भी थे हमारी सन आँखों पर हमारे वालिद की जगह है। अब बहरहाल बच्चों पर हाथ उठाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਖਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੀ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ नहीं बेटा, मेरे टीचर ने मेरे कान का पर्दा पाड़िया। आप ठीक कह रहे हैं, और इस किस्म के बेशुमार वाक़यात मिलते हैं। यही तो वजह है कि अब इंसानियत जो है या मुआशरा जो है, ये दुनिया जो है इस नतीजे पर पहुंची है कि बच्चे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਕੂਲੇ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਦੌਰ ਸੀ, ਟੀਚਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। मैं कह तो रहा हूं कि वो दौर था, उस दौर में पता नहीं सही था या गलत था, वो उस दौर की बातें हैं। अब बहरहाल इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਨ। यार असातिज़ा भी तो, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मुझे इतनी मार पड़ी, मगर मुझे उनके खुलूस पे कोई शक नहीं है। मुझे आज भी उनकी मार पर प्यार आता है, मेरे ये जज्बात है उनके लिए। मगर अब भाई मैं कह तो रहा हूँ कि अब बहरहाल सिर्फ प्यार से, दलील से, मोहब्बत से बच्चे को पढ़ाना चाहिए। वो दौर लद गया जब तशद्दुद किया जाता था, तशद्दुद की इजाज़त दी जाती थी। अब इसकी इजाज़त नहीं दे सकती ये सोसाइटी। सनी सर, जी बेटा, मैडोना की गाल पे डिंपल पड़ता था? इसका तो नहीं पता, आपकी टीचर की गाल पे पड़ता है। लवली यू आर सर। लिबरल कहना चाह रहे हैं। ये सिखा रहे हैं आप अपने स्टूडेंट को? सनी सर ने तो मुझे और भी बहुत कुछ सिखाया है जो मैं ऑन एयर नहीं बता सकता। बेटा ये तेरे सनी सर ने या सनी लियोन सर ने? ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਔਰ ਟੀਚਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੈਲੀ ਇਤਰਾਮ ਕਰੋ। अच्छा ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰ ਫਰੈਂਡ। अच्छा ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। हाँ वसी अंकल, यू नो सनी सर ने मुझे वो बातें भी बताई हैं जो मैंने पापा से पूछा, उन्होंने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा। क्यों? मैं आपको नहीं बता सकता, ऑन एयर बैठे हुए। पुत्र तेरे सनी सर ने या सनी लियोन सर ने? नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। बेटा क्यों फीडर ਨੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਟੇੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪਈ ਹੈ, ਫੀਡਰ ਵੀ ਪਾਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। शादी जी जी मेरा और मास्टर साहब का मुआहिदा हुआ है कि इन्होंने हाथ नहीं उठाना, मैंने कद नहीं उठाना। मास्टर साहब, बेटा ਇਹ ਛਣਕਣਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਪੜੇਗਾ?
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। जैसा कि मैंने पहले आपसे अर्ज किया था कि एक सरप्राइज होगा। दो नहायत उम्दा मेहमान अपने अपने फ़न के माहिर हमारे साथ मौजूद हैं। माहिर इल्म नजूम है AS चौधरी साहब अल-मारूफ मामू। वेलकम टू द शो मामू जी। थैंक यू। 2 बार माँ कहे तो एक मामू बनता है। मामू, आप कहीं हमें मामू बना के निकल तो नहीं जाएंगे? या ये बताएंगे कि 2019 में मुझ पे क्या बीतेगी? 2018 ਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ 19 ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੋਹਣਿਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਜਾਣੇ ਇਹ ਵੀ नहीं 365 दिन पूरे ही करने पैने ने। रमल फाल दलील यानी 2019 भी होंगे जलील। मामू के साथ मौजूद हैं अजीम हनीफ शेख साहब, आप भी एस्ट्रोलॉजर हैं, माहिर इल्म नजूम है। मामू, आपसे शुरू करते हैं। सियासत को कैसे देख रहे हैं? इसमें एक ट्रेंड बनेगा जिसमें सियासी तौर पे आपका हर काम सेटल डाउन होता जाएगा। अच्छा। इसमें अभी 3 महीने दे रहे हैं। अच्छा। जनवरी, फरवरी, मार्च में इसमें तो काफी बहरानी अंदरूनी सियासत की बात हाँ जी, काफी बहरानी कैफियत रहेगी। लेकिन मार्च के बाद जो है फिर ये सेटल डाउन होना शुरू हुआ और ये बड़ा अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, उसमें ये जो 2019 का आदत बनता है ना, आदत के हवाले से भी देख लेते हो। 3 नंबर बनता है, 3 नंबर बिस्मिल्लाह का भी बनता है। इस पूरे साल में नई शुरुआत होंगी हर चीज़ की। बहुत सारी ऐसे प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे जो आगे जाके फ्रूटफुल ज़रूर होंगे, लेकिन इसमें शुरुआत होगी। जैसे मामू ने बताया कि मार्च से होगा, मार्च का महीना भी तीसरा है, और वो तीसरे महीने से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें स्टार्ट होंगी जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होंगी। इसके फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट नए स्टार्ट हो सकते हैं। शेख साहब, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਤਾਰੇ ਨੂੰ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। अच्छा मामू, 2019 में मईशत, आम आदमी की जिंदगी, जी रोटी, नान, कपड़ा, ये अभी ये समझें कि 2019 की शुरुआत जो है ये तो काफी गंभीर है। अच्छा। इसको आसान ना समझे तो तब तक जिंदा रहेगा वो? बिल्कुल हाफ हो जाएंगे हम, तुमको खबर होने तक। लेकिन ये इसका सेकंड हाफ जो है आपके इकोनॉमी वाइज बेहतरीन होना शुरू हो जाएगा। तो सेकंड हाफ तक अगर आप जिंदा रह गए, बर्दाश्त कर गए, तो उसके बाद बेहतरीन होगा। जनाब, सेकंड हाफ से पहले क्या देखते हैं? सेकंड हाफ के बाद क्या 2019? इसमें ये आम आदमी जो 10,000, 15,000, 12,000, 6,000, 8,000 कमा रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई ऐसी बड़ी उम्मीदें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि 2019 में पहाड़ में से सोने निकल आएंगे और कुएं तेल के बरामद हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा कि समुद्रों में से तेल निकल आएंगे और मिनरल्स निकल आएंगे। ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं, इस वक्त ऐसा कुछ नहीं होगा। 2019 जैसे जैसे चलता जाएगा, मार्च अप्रैल के बाद कुछ चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी ग्रेजुअली, और उसके बाद सेकंड हाफ के बाद काफ़ी सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। उसकी वजह से पाकिस्तान को फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन आम आदमी जो है 8,000, 10,000, 15,000 वाला, जिसके लिए नान रोटी लेना मुश्किल होती है, चावल खरीदना मुश्किल होती है, टमाटर का रेट देखकर वो कहता है कि नहीं तो किलो रहने दे, बस 2 दाने मन दे दे, उसकी जिंदगी में क्या होगा? इसमें कोई इतनी ज्यादा रैपिड चेंजेस या बेहतरी आने के चांसेस कोई नहीं है 2019 में। मतलब कि अचानक से चीजें ठीक हो जाएंगी, वो जादू की छड़ी घूमेगी तो चीजें ठीक हो जाएंगी, ऐसे चांसेस कोई नहीं है। ग्रेजुअली ठीक होंगी, प्राइसेस भी ठीक होंगी, बाकी चीज़ें भी ठीक होंगी। तेल की प्राइसेस, डॉलर प्राइसेस, जितनी सारी चीज़ें हैं ये ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू। मामू, सहाफत जो है वो सिर्फ तनकीद नहीं करती है, सहाफत शऊर भी देती है। एक ऐसा मुल्क जहाँ तालीमी इदारे उस मकदार में नहीं है, उस तादाद में नहीं है, होने चाहिए, वहाँ ये टेलीविज़न चैनल, ये अखबारात जो हैं ये शऊर भी देते हैं, ख़बर भी देते हैं, और थोड़ी बहुत दानिश भी इनके साथ जारी होती है। इनके माली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। 2019 में सहाफ़त पे, सहाफ़ियों पे ओवरऑल जो माली मामलात इनके हैं, इसको बेहतर देख रहे हैं या 2019 में भी ख़राब देख रहे हैं? नहीं, 2019 में सैकड़ों हमारे भाई जो है, हमारे दोस्त, हमारे साथी जो है वो बेरोज़गार हो चुके हैं। हज़ारों सैकड़ों, तो एक एक इदारे से सैकड़ों लोग निकले। इनके मामलात इंशाल्लाह 2019 में बहुत अच्छे हो गए। लेकिन ये जो है सहावत जो है, इसने भी जो बोया वो काट रहे हैं। अच्छा। क्योंकि सहावत भी उस तरह से नहीं जैसे कि सहावत होनी चाहिए थी पिछले सालों में। लेकिन 2019 में माली मामलात बेहतर देखते हैं, बहुत बेहतर होंगे। 6 महीने बाद, 6 महीने पहले नहीं, 6 महीने पहले, 6 महीने तक सांस रोक के किसी तरीके से जिंदा रहे आप, उसके बाद फिर उम्मीद है, अगर जिंदा रह गया तो फिर उम्मीद है आपकी। 2019 में साहब भी कह रहे हैं 6 महीने के बाद बेहतर हो सकता है। अच्छा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये है कि मेरे इल्म के मुताबिक जो न्यूज़ का जो शोबा है इसमें थोड़ा डाउनफॉल आएगा। अच्छा, मजीद 4, 5, 6 चैनल्स बंद होंगे और 4, 5, 6 नए आ जाएंगे। एंटरटेनमेंट वाला जो शोबा है उसमें तरक्की होगी, उसमें नई चीजें आएंगी, फिल्म, ड्रामा और ये सारी चीजें बनेंगी। न्यूज़ में आप हाँ जी, माली तौर पे न्यूज़ में प्रॉब्लम्स आएंगी और रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा। ये न्यूज़ जो है ये कंट्रोल्ड हो सकती हैं, ऐसा कोई कानून या ऐसी कोई चीज़ आ जाएगी जिससे न्यूज़ कंट्रोल करनी
की कोशिश होगी। अच्छा। और उसकी वजह से प्रॉब्लम न्यूज़ वाले शोबे में आएगी। न्यूज़ कंट्रोल हो जाएगी, यानी कोई खबर आई है ना कि किसी घर जुड़वा बच्चे पैदा होए ने ते असल एक न्यूज़ चलेगी कि इक्को बच्चा पैदा होया है। ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਵਧਾਈ ਲੈਣ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। अच्छा मामू, खेल को कैसे देख रहे हैं? एक क्रिकेट है थोड़ी बहुत हमारी, बाकी तो हर चीज हमारी बाकायदा खत्म हो चुकी है। आप ये देखें कि 2017-18 में, हाँ, वर्ल्ड कप भी तो है क्रिकेट का। हाँ जी, मैं ये बता रहा हूँ कि 2016 से शुरू हुआ था टुकड़ा, 16, 17 और 18 ये 3 साल जो है, ये जो है इसमें आपके स्पोर्ट्स डैमेज हुआ है और इसमें कुछ बात बन नहीं सकी। लेकिन अब जो है ये स्पोर्ट्स के मामला बहुत अच्छे होते जाएंगे। 2019 में वर्ल्ड कप हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? इंग्लैंड वाला जीतेंगे तो नहीं, लेकिन पोजीशन आपकी बहुत अच्छी होगी। अच्छा जी, ਵੈਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਘੁਲਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਟਹਿਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। शेख साहब 2019 में पोजीशन अच्छी होगी मगर जीतेंगे नहीं वर्ल्ड कप, ये कहना मामू का। आपके सितारे क्या कहते हैं? नहीं, वैसे वर्ल्ड कप जीतते नजर नहीं आ रहे और पोजीशन भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। ये सितारे कह रहे हैं कि तज्जिया कह रहा है? नहीं, सितारे कह रहे हैं। और बाकी स्पोर्ट्स जो हैं, स्नूकर की तरफ से, हॉकी की तरफ से जो बिल्कुल ज़बो आली का शिकार है, उसमें अच्छी खबर आ जाएगी। अच्छा। स्कॉश से अच्छी खबर आ जाएगी, टेनिस से आ जाएगी, बाकी स्पोर्ट्स से आ सकती है। क्रिकेट से कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है पाकिस्तान। ਮਾਮੂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ? क्यों? ਮਾਮੂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਸਨ, ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਮੂ ਜੀ ਨੇ ਹਾਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਝਲਕੀਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ ਸਨ। अच्छा, एक बहुत ही यानी कि सारी दुनिया से ताल्लुकात मैटर करते हैं। हमारे जो बाकी जो हमारे पड़ोसी हैं, अफगानिस्तान है, ईरान है, चाइना है यकीनन, मगर इंडिया से चूंकि एक खास तारीख है हमारी, तो इंडो पाक रिलेशन को कैसे देखते हैं 2019? जी हाँ, ये इसमें बताते चलूँ मैं आपको कि सब मामला ठीक हैं, ताल्लुकात पब्लिक टू पब्लिक भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। और वैसे लेकिन मोदी साहब का क्या करें? हाँ, मोदी साहब का जो है ना, मोदी साहब की सुई जो फंसी हुई है, वो एक जगह फंसी हुई है कि कश्मीर की बात ना शुरू कर दें, वरना हमारे तो ताल्लुकात तो ठीक हो जाए थे, अब भी हैं। और ये मोदी साहब के दीदा, क्योंकि वो कश्मीर के लिए टेबल पे आना ही नहीं चाहते। तो 2019 में ताल्लुकात करतारपुर बॉर्डर खुलने के बाद भी वे वहीं रहेंगे या बेहतरी की तरफ जाएंगे? मेरा ख्याल है वहीं रहेंगे। अच्छा, हाँ, मोदी साहब के जाने के बाद बेहतर होंगे सर। काफी हवा तो निकल गई है हाँ, इलेक्शन काफी के हवा बारे निकल से। गई। अच्छा शेख साहब, आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान इंडिया अच्छा, इस ताल्लुकात? वक्त पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात जो मैंने देखे हैं और सारा हॉरोस्कोप बनाया दोनों मुल्कों का, इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया की अप्रैल के बाद से ट्रेड शुरू हो जाएगी। अच्छा। ये किसी अच्छा। भी, हाँ बिल्कुल ट्रेड शुरू होगी। उसमें ट्रेड आपकी एंटरटेनमेंट, आज मैं पढ़ रहा था बीबीसी की रिपोर्ट कि फायदा तो बहरहाल ट्रेड में है। 20 रुपए किलो टमाटर है गालिबन भारतीय पंजाब में, जो बिल्कुल साथ है वागा के। और हमारे यहाँ 200 रुपए किलो है। तो अगर ट्रेड हो तो बहुत सारा फायदा जो है वो आम आदमी को। दो किस्म की ट्रेड होगी, एक तो इस तरह की ट्रेड होगी कि अजनास से ट्रांसफर होंगी, और दूसरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, उसमें भी अभी भी हो रही है, उसमें भी म्यूचुअली दोनों मुल्क काम करेंगे। बर्फ पिघल जाएगी, जो इतना सारा टेंशन क्रिएट हुई है वो कम हो जाएगी, और इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो जाएंगे। मेजर ब्रेक थ्रू देखते हैं या ठीक है आहिस्ता आहिस्ता बर्फ तो हालात बहुत बेहतर हो बर्फ कैसे पिघलेगी? जैसे जून में सड़क पर रखी होती है या दिसंबर में कहीं बाहर पड़ी होती है? नहीं, जिस रफ्तार से पिघलेगी। जैसे ये करतारपुर बॉर्डर खुला है, उसके बाद से उनकी फेवर्स पाकिस्तान को सिख बरादरी की मिली है, तो बाकियों के भी फेवर्स मिलेगी। ठीक है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के अवाम तो चाहते ही हैं, बाकी जो हुकूमतें हैं वो भी बेहतर हो जाएंगी। मामू, हमारा म्यूजिक, हमारा अदब, हमारी शायरी, हमारा ड्रामा और फिल्म, ये जो 4-5 शोबे हैं, इनको कैसे देख रहे हैं 2000? हाँ, ये मैं समझता हूँ कि पिछले 15 साल के बाद ये शोबा जो शोबिस का और इंटरटेनमेंट का बहुत तरक्की करेगा। अच्छा। और इस मामले में इंडिया और पाकिस्तान मिलकर काम करेंगे। इसके लिए भी आप लगते हैं 6 महीने जिंदा रहना होगा, उसके बाद होगा ये सब? नहीं, ये इंशाल्लाह जल्दी हो रहा है, ये पहले हो जाएगा। हाँ मामू जी, तो 3 महीने घटा लो। आर्टिस्टां का बहुत ही बुरा हाल होया है। शेख साहब, अजीम साहब बहुत अच्छी गल की थी कि इंडिया पाकिस्तान एक ट्रेड शुरू हो जाएगी। अगर उतो कैटरीना आए तो इथों उधर कौन जाएगा? इथों शेख रशीद साहब जाएंगे। ਲਓ ਫਿਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੀਟੀਆਈ 'ਚ ਫੱਡਾ ਪੈਣਾ ਜੇ। वो क्यों जी? भाई शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहना भाई मुल्कों मुल्कों मैं खज्जल होता रहा। ईरान में गया, अफगानिस्तान में गया, अमेरिका में गया, चाइना में गया, यूएई में मैं गया, और जब कैटरीना की बारी आई तो आपने शेख रशीद को भेज दिया। ये नाइंसाफी है। मैं मुल्तान जा रहा हूँ।
नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे वक्फे बाद वापस आते हैं। बहुत ही खूबसूरत गीत भी आपका इंतजार कर रहा है और फिर मामू से और शेख साहब से पूछेंगे कि इमरान खान साहब, बिलावल, जरदारी, नवाज शरीफ और मरियम बीबी के बारे में सितारे क्या कहते हैं। छोटे वक्फे बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर, कहीं नहीं जाइएगा। क्या कहने निम्रा बीबी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। जी मामू ਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਫਾਇਰਿੰग ਕਰਨ मामू, सी पैक के बारे में सितारे क्या कहते हैं? दुश्मनों की नजरें हैं इस पर? हाँ, इसमें अभी सी पैक तो बहुत फायदेमंद रहेगा पाकिस्तान के लिए और हर तरह नहीं, मुस्तकबिल में तो अल्लाह करे हो ही जाएगा। 2019 में कैसे 2019 क्योंकि अभी काफी कंट्रोवर्सीज का शिकार करने की कोशिश की गई और हर रोज कोई उल्टी सीधी खबर उसके बारे में जबरदस्ती आती है। अभी तो ये और झूठी खबर। अभी इंडिया को तो बिल्कुल पसंद नहीं ना, ये काफी साजिशें, काफी गड़बड़ अभी होने वाली है। अच्छा। सी पैक में। अच्छा। और इस पहले 3 महीने में तो काफी परेशान कौन होगी। अच्छा। उसके बाद ये कूल डाउन होगा मामला 2019 और सी पैक इंशाल्लाह। 2019 में सी पैक के बारे में मेरे पास जो आ रही है सारी रेटिंग, वो ये आ रही है कि इस साल में स्कैंडल्स बहुत सारे दोबारा आएंगे और आएंगे। अच्छा। और वो पाकिस्तानियों की वजह से नहीं आएंगे, वो चाइनीज कंपनीज की वजह से आएंगे और चाइना की वजह से वो स्कैंडल्स आएंगे। और इस्लामी मुल्कों के साथ सी पैक का कांटेक्ट होगा, चाइना के साथ बाकी इस्लामी मुल्क जो भी हैं, ऑयल उनकी रिफाइनरी भी की बात involvement हुई है होगी। सऊदीया से, वो लगेगी, उस पे पेशरफ्त होगी या वो खाली लगेगी, खबर रह जाएगी? वो जरूर लगेगी, लेकिन उसमें भी अगर उनका इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो वो फिर फ्रूटफुल होगा। हाँ, इसके लिए सितारों की क्या जरूरत है? ये तो बुनियादी बात है। नहीं, उसका उनको अगर रिजल्ट्स उनको नहीं मिलते, वो फेवर्स पाकिस्तान को इस्लामी मुल्क जितने इस वक्त फेवर्स दे रहे हैं, वो अपने इंटरेस्ट को वॉच करते हुए फेवर्स देंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਮੂ ਜੀ ਨੇ ਸੀ ਪੈਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਓਕੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? क्यों? ਮਾਮੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗਵਾਦਰ ਚਾਪ 3 ਪਲਾਟ ਲਏ। ਔਰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਦਰਸ਼ਿਪ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਉਣਾ। मामू, जरदारी साहब के बारे में सितारे क्या कहते हैं? अभी तो बाहर है, जब आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं अभी बाहर है। इत्तलात ये हैं कि शायद वो यानी कि अंदर होंगे, प्रोग्राम मुकड़ तक अंदर हो जाए। सितारे क्या कहते हैं? जी हाँ, जरदारी साहब की पोजीशन बहुत नाजुक है। अच्छा। और पॉलिटिकली भी और इनकी शख्सी एतबार से भी। अच्छा। और इनकी साख को, इनकी सियासी पोजीशन को बहुत नुकसान। ठीक है, 2019 बाहर गुजारेंगे, अंदर गुजारेंगे? अंदर गुजारेंगे। ਮਾਮੂ ਜੀ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸਾਈਂ मैं तो अंदर जा रहा हूँ और मामू को उठा के ले और गायब कर दो। जब मैं बाहर आऊंगा तो तब ये मंजर आम पे मामू आएगा। यार बात ये है कि जरदारी तो अंदर कराया, ये लग रहा है तुम लोगों ने जरूर कराया। शेख साहब, जरदारी साहब को कैसे देखते हैं 2019 में? सरदारी साहब के ऊपर अप्रैल तक का महीना वो टफ है। अच्छा। और मुझे नहीं लगता कि वो इतने ज्यादा लंबे अरसे के लिए अंदर रहेंगे। अच्छा। हाँ जी, कोई ना कोई ऐसी मुफाहमती पॉलिसी स्टार्ट हो जाएगी जैसे पहले अच्छा, नहीं, ये अगेन तकसीया है या आपके सितारे? नहीं, सितारे कह रहे हैं, ये आपके सरदारी साहब के सितारे अप्रैल तक की तो कमजोर है। कमजोर। उसके बाद जाके इनकी कोई ना कोई ऐसी मुफाहमत, कोई ऐसी चीज हो जाएगी जिसके बाद ये बाहर आ जाएंगे और गवर्नमेंट का हिस्सा होंगे। अच्छा जी, इंटरेस्टिंग। अपना मामू, नवाज शरीफ साहब। हाँ, ये जो है ना, अब जो जैसे ये कह रहे हैं अपने शेख साहब, अब जो डील होगी जरदारी से हो, मियाँ नवाज शरीफ से हो, किसी से भी, अब जो डील होगी वो पैसे के लेन देन पे होगी। अच्छा। पैसे दे दो। तो 2019 नवाज शरीफ साहब की मुश्किलात में कमी करता हुआ नजर आ रहा है सितारों के जरिए। आपके सितारे क्या कहते हैं, या मुश्किलात बढ़ेंगी? नहीं, पहले 3 महीने काफी मुश्किलात बढ़ेंगी। ठीक है। लेकिन इसके बाद मामला बड़े 3 महीने गुजारने हो तो फिर उनके लिए आपको आसानी फिर आसानी होंगी और नवाज शरीफ साहब 2019 नवाज शरीफ साहब की कोई सजा इतनी लंबी मुझे नजर नहीं आती। अच्छा। कैप्रिकॉर्न है, उनकी सजा वैसे मून साइन लिब्रा है, उनकी सजा कोई इतनी लंबी नजर नहीं आती। ठीक है, आपको लगता है फरवरी के, हाँ, ये जो फरवरी का लास्ट वीक हो तो उसमें आगे सारी पैचअप हो जाएंगे, मुफाहमत हो जाएगी और वो बाहर ही होंगे। ठीक है। और सियासत में इन होंगे। मामू, नवाज शरीफ साहब की साहबजादी मरियम साहिबा के बारे में क्या कहते हैं सितारे 2019 में? हाँ, मैं इसमें बताता हूँ। फाल किरदार अदा करते नजर आएंगी या खामोशी इख्तियार करेंगी? मरियम जो है अभी खामोश है। उसकी वजह ये है कि पिछले दिनों में जो उन्होंने अपनी सियासत की है उसके अंदर एक लहजा इनका पाया गया। अगर ये पिछले 20-25 साल से हुकूमत में हैं लोग और इन्होंने हुकूमत की है, उसका मरियम का जो लहजा है सियासी तौर पे वो इतना सख्त लिया। लेकिन कहते बड़ा फायदा हुआ उनको, उसके वोट बैंक को बड़ा फायदा हुआ उस
एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो उन्होंने लाइन ली हुई थी? हाँ, मैं सियासी तौर पे कह रहा ठीक है। हूँ। सियासी तौर पे जैसे आपने देखा इस तरह उंगली कर करके वो तकरीर करते तो सितारे अब उनके बारे में क्या कहते हैं? सितारे उनके बहुत अच्छे हैं, इंटेलिजेंट है, लेकिन ये अभी 19 के अभी पहला हाफ जो है 19 का, उसके अंदर कोई ज्यादा खूबी की बात ठीक, उनको भी 6 महीने, हाँ 5-6 महीने गुजारने। शेख साहब, मरियम बीबी, सितारे और 2019। मरीम बीबी के सितारे, ये जैसे ही जनवरी एंड होगा, फरवरी का स्टार्ट होगा, यहाँ से पॉलिटिकली वो दोबारा इन होंगी। अच्छा। उनके दोबारा ट्वीट्स आने शुरू हो जाएंगे और पॉलिटिकली 2019 से लेके 2022-23 तक उनका जो सितारा है बहुत स्ट्रांग है पॉलिटिकली, और वही रूल इसका मतलब है कि वही अगर इन आप, होंगी इसका सियासत मतलब है अगर आपके सितारे मरियम बीबी को स्ट्रांग देखना है तो फिर नून लीग दूसरी तरह से नून स्ट्रांग लीग नजर आ रही ऑब्वियसली है। स्ट्रांग हो रही है आगे स्ट्रांग होती नजर आ रही है। बिलावल साहब, मामू सर 6 महीने के बाद। नहीं सर, ਮਾਮੂ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜੂਮੀ ਹੋ ਕਿ ਦਾਈ ਹੋ? मैंने पहले मैंने कहा था कि जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने बहुत डिफिकल्ट हैं और सियासी बहरान आएगा, उसके बाद कुछ न कुछ, लेकिन 6 महीने के बाद एस्टेब्लिश होने लग जाएगा। बिलावल साहब और 2019 और सितारे। मैं इसमें थोड़ा सा बताते चलूँ शाह साहब कि बिलावल जो है, इसको ये लीडराना कैफियत इसमें नहीं है, इस लीडर बनाया जा रहा है। अच्छा। हाँ, तो अभी इसमें बहुत टाइम लगेगा इसके लीडर बनने में। अभी तो मैं समझता हूँ अनमेच्योर किस्म की वो तकरीरें कर रहे हैं, अनमेच्योर किस्म की एक्ट कर रहे हैं, तो वो मुझे वैसे आपकी बात से इख्तलाफ है। मैंने उन्हें जो देखा है तो बड़े बाजू का तो बहुत इंप्रेसिव वो आते हैं, लेकिन बहरहाल आपका एक अपना नुक्ता नजर है। सितारे क्या कहते हैं? 2019? सितारे ये कह रहे हैं कहते हैं कि मुच्छा आ जाएंगी कि 2020-21 बिलावल के लिए काफी बेहतर रहेगा, लेकिन फिलहाल इसमें कोई ऐसी हुजूर, मैं पर्सनली मिला हूँ उनसे, मेरे पास उनका डेट ऑफ बर्थ है जो पर्सनल है उनका। उन्होंने बिल्कुल मुझे उनका जो मैंने हॉरोस्कोप देखा हुआ है वो बहुत स्ट्रांग आ रहा है। अच्छा। मरियम का और बिलावल का, इन्हीं दोनों का फ्यूचर आगे पॉलिटिक्स में रहेगा, और बिलावल बड़े मेच्योर तरीके से अगले 3 महीने बाद आएंगे कि मार्च अप्रैल से, क्योंकि 6 महीने की बात मैं नहीं करता, क्योंकि 6 महीने अगर रहेगा तो उसके बाद बंदा आदी हो जाएगा, ऐसी बात कोई नहीं है। लेकिन ये है कि यहाँ पे आके बिलावल बहुत स्ट्रांग होंगे। उनकी बेशक उनको अगर लिखी हुई तकरीर मिलती है, लेकिन वो पॉलिटिकली खुद से बहुत सारे ऐसे डिसीजंस करेंगे जिसका उनकी पार्टी को फायदा होगा। और बहुत 2019 आपको मरियम बीबी भी स्ट्रांग होती नजर आ रही है, दोनों जनवरी के बाद दोनों बहुत स्ट्रांग, और आपको बिलावल साहब भी स्ट्रांग होते नजर आ रहे हैं। इसी ये जो दोनों स्ट्रांग हो रहे हैं, इसकी वजह से पीटीआई गवर्नमेंट को बहुत मुश्किल। यही आखिरी सवाल है मामू, कि इधर से अगर ये स्ट्रांग हो रहे होंगे और इमरान खान साहब और फिर जो टीम उनको मिली है, सुभान अल्लाह, इमरान खान साहब 2019 में आराम से रहेंगे या मुश्किल का शिकार होंगे? अगला इलेक्शन में मलेशिया तो लड़ देंगे। आराम से तो इमरान खान रह ही नहीं सकते, किसी ने रहने नहीं देना। रह नहीं सकते ना आराम से। उनकी जो सबसे बड़ी जो उनका खराबी है वो ये है कि ये इनमें मर्दुम शनासी नहीं है, और वो सिलेक्शन पर्सनालिटीज के अंदर मार खाते हैं, और ये इसी वजह से इसके यहाँ सारी कमजोरियां आई हैं, वरना तो ठीक है। बताते तो खुद तो इमरान खान बड़ा strong है। 2019 इमरान खान साहब की मुश्किलात में इजाफा करेगा सितारे? क्या कहते हैं, ये कमी होगी? अभी तो शुरुआत में तो बहुत इजाफा है। शेख साहब, आखिरी सवाल। 2019 में इमरान खान साहब को 2 प्रॉब्लम्स आएंगी। एक, उनको अपने जो मशीर हैं, वजीर हैं, जो वफाकी वज़रा हैं और सूबाई वज़रा हैं, उनके बयानात की वजह से इनको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, और उनको उस चीज़ की को रेक्टिफाई करने के लिए बहुत बहुत बार-बार आना बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब आपकी तशरीफ आवरी का, बहुत बहुत शुक्रिया मामू आपकी तशरीफ आवरी का। नाज़रीन करामी, ये था आज का शो, और देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैज। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। लो जी, अल्लाह करे सन 2019 साडा मुल्क तरक्की करे ते मैं मामू दी फोटो $750 वाला बना के ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣੀ।